Hello, dear students. How are you all? I hope you all are well and you are keeping yourself safe. Today, I'm here with another story from the book First Flight. We are on the chapter number 3, and third chapter deals with the different flying experiences of different kind of creatures. So in the first part we have read about the first flight of seagull, how it started, how it learned to fly, how it made its first flight, and how it overcame its fear and started flying. In this story, the black aeroplane, we are going to read about a person who is flying his aeroplane, and there he gets stuck in some kind of storm, and how he comes out of that, we will learn about that. So let's start reading. The moon was coming up in the east behind me. The stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone, high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. So the main character of the story, he is flying his aeroplane, and the name of the aeroplane is Dakota. Dakota is a kind of aeroplane that is used for flying. So he's flying back from England, France to England. So he's going back to his home. So he's very happy. So in the starting he is saying that moon was coming up in the east behind me. That means he was going towards the west. So the moon was coming behind him. The stars were shining in the clear sky above me. That means there was not a sign of any cloud. Okay, so in the first line he is saying that he was going to towards the west, and second he is telling that there was not any cloud in the sky. The sky was clear and he could see the stars twinkling on it. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside, though, because it was night, so all the people were sleeping, and he was flying his aeroplane above the country, and he was flying his old Dakota from France back to England. So he was going to England, and he was dreaming, he was thinking of being back to his place and spending the time with his family. And when he looked at the watch, he saw that the time was 1:30 in the morning. सो इन दिस पैरा वी कम टू नो दैट जो प्रोटैगनिस्ट है वो जा रहा था अपने घर को, एंड ही वॉज फ्लाइंग हिज प्लेन जिसका नाम था डकोटा, एंड क्लियर था स्काई, बिल्कुल क्लियर था, कोई वहाँ पे क्लाउड नहीं था, स्टार्स शाइन कर रहे थे, एंड उसको वो सोच रहा था आगे के बारे में कि वो अपने घर वापस जाएगा, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा, और फ्रांस के ऊपर वो कर रहा था, फ्रांस से वो इंग्लैंड जा रहा था. सो जब उसने टाइम देखा, इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग, तो सुबह के 1:30 बज रहे थे. देन ही वॉज वेरी हैप्पी. यू नो, जब हम घर वापस जाते हैं तो वी ऑल आर वेरी हैप्पी. सो नेक्स्ट ही सेज, आई शुड कॉल पेरिस control soon, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. तो ही व्हेन ही लुक्ड एट द वॉच, और उसको लगा कि मैं अब फ्रांस उसके पेरिस के ऊपर से गुजर के जा रहा हूँ, तो ही थॉट कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम को बता देना चाहिए, इन्फॉर्म कर देना चाहिए. तो उसने जब देखा तो उसके सामने, मतलब एरोप्लेन की नोज़, मतलब उसकी जो पॉइंट होता है आगे वाला, तो वहाँ से उसने सामने देखा, तो वहाँ पे उसे लाइट्स दिख रही थी. किसकी लाइट्स थी? पेरिस की. सो आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, Paris Control, Dakota DS 088 here. Can you hear me? I'm on my way to England. Over. Then so he's switched on his radio, और उसने अपना रेडियो ऑन करके पेरिस कंट्रोल को बोला कि डकोटा DS 088 इज़ हियर. तो ये जो है, ये उनके कोड वर्ड्स होते हैं. सो जो पायलट्स होते हैं वो कोड वर्ड में बात करते हैं.
एंड देन ही आस्क कि आप मुझे सुन सकते हो, मैं इंग्लैंड को जा रहा हूँ। ओवर, ओवर इज़ द वर्ड दैट इज़ यूज्ड, ज़्यादातर ये ओवर को यूज़ किया जाता है जब हम ऐसे बात करते हैं। तो जब कोड वर्ड्स में बात करते हैं तो ओवर का जब लास्ट सेंटेंस के लास्ट में ओवर बोला जाता है, जिसका मतलब ये है कि अब मेरी बात ख़त्म हो गई है, अब आप बता सकते हो। देन the voice from the radio answered me immediately. DS088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS088, over. So he says, उसको रेडियो कंट्रोल से वापस आवाज़ आई कि DS088 हमें आपकी आवाज़ सुन रही है, अब आपको 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ टर्न करना चाहिए। तो दे आर गिविंग हिम द डायरेक्शन टू मूव। तो कंट्रोल रूम में कॉल करने का क्या फ़ायदा होता है कि अगर सामने से कोई और एरोप्लेन आ रहा होता है तो वो इन्फॉर्म कर देते हैं। तो ही इज़ रेडियो कंट्रोल से वहाँ पे उसको क्या मैसेज मिलता है कि आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न कर लीजिए। ठीक है, एंड दे सेज ओवर कि हमारी बात ख़त्म हो गई है। आई चेक द मैप एंड द कंपस। अब कंपस क्या होती है? एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, यूज़ किया जाता है डायरेक्शंस देखने के लिए। वी ऑल नो कि उसका जो पॉइंट है वो हमेशा उसकी जो नीडल होती है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। तो ये जो शिप्स वाले होते हैं, जो एरोप्लेन्स उड़ाते हैं, इनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, इवन फॉर एवरी वन, बट दे आर द पीपल दोज यूज देम द मोस्ट। सो उसने अपना मैप चेक करा, कंपस चेक करी, और मैंने जो उसका सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक था उसको ऑन करा। दैट मीन्स उसका जो फर्स्ट फ्यूल टैंक था वो ख़त्म हो चुका था, और उसके पास जो लास्ट बचा था सेकेंड वाला, उसने वो स्टार्ट कर दिया था, उसका ऑयल यूज़ करना शुरू कर दिया था। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, and they turned from towards the England. I'll be in time from breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. So वो सोचता है कि मैं सुबह के खाने तक तो पहुंच ही जाऊंगा। तो वो कहता मुझे बहुत अच्छा, मैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाऊंगा। बड़े टाइम के बाद वो घर वापस जा रहा था, तो ही वॉज बिकमिंग एक्साइटेड ऑफ थिंकिंग अबाउट हिज डिनर, सॉरी ब्रेकफास्ट। तो वो ब्रेकफास्ट के बारे में सोच के खुश हो रहा था, और सब कुछ यही सही कि सब कुछ स्मूथ जा रहा था, बड़े आराम से वो अपना प्लेन उड़ा रहा था, और उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं फेस करनी पड़ रही थी। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. तो अभी 150 किलोमीटर्स वो पीछे था। ठीक है, तो उसको जब उसने अभी 150 किलोमीटर दूर था, जब उसने क्लाउड्स देखे, स्टॉर्म क्लाउड्स। और क्लाउड्स कैसे थे? स्टॉर्मी थे, मतलब तूफान था उसमें। दे वर ह्यूज, दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द सी। और वो क्लाउड्स कैसे लग रहे थे? ऐसे जैसे उसके सामने आकाश में चारों तरफ बड़ी बड़ी माउंटेन्स, ब्लैक कलर की माउंटेन्स खड़ी हो गई। I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. तो वो कहता है कि मुझे पता था कि ना तो मैं इनके ऊपर से क्रॉस करके जा सकता हूँ, ना ही नॉर्थ या साउथ की तरफ से घूम के जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना फ्यूल नहीं है। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. तो वो सोचता है कि मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए, बट वो तो वापस घर जाना चाहता था। तो उसने वो अभी खाने के बारे में, ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहा था कि मैंने तो वो खाना खाना है। I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. तो वो कहता है मैं रिस्क लूंगा और ओल्ड डकोटा को स्टॉर्म्स के बीच में से लेके जाऊंगा। सो ही वॉज सो मिसिंग, ही वॉज मिसिंग हिज फैमिली टू दैट एक्सटेंट दैट ही just went inside the storm to just to reach his home. So everyone loves his home. Me and you all, we love our homes also, always. So inside the clouds everything was suddenly black. अब वो क्लाउड्स के बीच में से होके जा रहा था, सब कुछ अंधेरा, वहाँ पे अंधेरा हो गया बिल्कुल ही। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। अब एरोप्लेन के बाहर उसे कुछ नहीं दिख रहा था।
द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। तो हवा हो रही थी, हवा बहुत तेज थी उसमें, तो सब कुछ डार्क हो गया था। अब उसको कुछ नहीं समझ आ रहा था, जो प्लेन था, एरोप्लेन था, वो क्या कर रहा था, जंप कर रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, घूमे जा रहा था, ट्विस्ट करे जा रहा था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है। उसके कुछ हाथ में ही थे ना। आई लुक्ड एट द कंपस, आई कुडंट बिलीव माई आईज। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. तो अब उसने जब अपनी कंपस की तरफ देखा, उसे विश्वास नहीं आया कि जो कंपस था वो घूम गोल गोल घूमे जा रहा था, काम ही नहीं कर रहा था, खत्म हो गया, चलना ही बंद हो गया। बिकॉज इट वॉज सो स्ट्रॉन्ग कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। इवन जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स भी, उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया था। तो जो दूसरे उसके बाकी के इंस्ट्रूमेंट थे वो भी अचानक से बंद हो गए। उसने रेडियो की यूज़ करना स्टार्ट करा। पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? दैट वॉज नो आंसर, द रेडियो वॉज डेड टू। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। सो उसने जब रेडियो स्विच करके बोला, उसने पैरिस कंट्रोल कहा है कि आप क्या मुझे सुन सकते हो? वहाँ से वापस उसे कोई आवाज़ नहीं आई। अब रेडियो भी जो था वो बंद हो गया था। अब उसके पास ना रेडियो ना कंपास, उसको स्टोर में कुछ नहीं दिख रहा था वो कहाँ पे है। और इन दैट वे ही वॉज जस्ट लॉस्ट, वो गुम गया था स्टोर में, उसको कुछ नहीं पता चल रहा था। ही वॉज सो फ्राइटेंड एट द टाइम। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। अब उसमें क्लाउड्स में उसे एक और एरोप्लेन दिखाई देता है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, उसके विंग्स पे लाइट्स नहीं थी, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। बट जो पायलट है उसको दिख रहा था कि जो उसके पास से, मतलब उसके बिल्कुल पास स्टॉर्म में वो उड़ रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी, और वो पायलट का, दूसरे पायलट का फेस भी देख पा रहा था, जिसका फेस उसकी तरफ मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। तो उसे बड़ी खुशी हुई कि एक और बंदा है मेरे साथ वहाँ पे स्टोम में। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेट, फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। तो वो जो दूसरा पायलट था, उसने क्या कहा, उसने अपना हाथ ऊपर करके वो वेव करा और कहा, हिला के बोला कि मेरे पीछे पीछे आओ। तो उसको थोड़ा हौसला हो जाता है पायलट को कि अब मेरे साथ कोई है, कोई मेरी हेल्प कर देगा। he knows that I am lost, I thought he is trying to help me। तो वो सोचता है, ये जो हमारा पायलट है ये सोचता है, ओल्ड डकोटा वाला, कि शायद उसे पता है कि मैं गुम गया हूँ, तो शायद मेरी हेल्प कर रहा है बाहर निकलने के लिए। he turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him। तो जो दूसरे पायलट थे उसने क्या करा, अब उसके एरोप्लेन को इसके डकोटा के आगे आगे नॉर्थ की तरफ चलाना शुरू कर दिया, ताकि उसके लिए, हमारे जो पायलट है डकोटा वाला, उसके लिए इजी हो कि वो उस दूसरे वाले का पीछा कर सके। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। तो वो ओबीडियंट चाइल्ड मतलब कि वो आज्ञाकारी, एक अच्छे बच्चे की तरह, क्योंकि उसके पास कोई वे आउट ही नहीं था, तो वो क्या कर रहा था, वो उसके पीछे पीछे धीरे धीरे अपना चला रहा था, प्लेन उसके पीछे पीछे उड़ा रहा था, उसको ही फॉलो कर रहा था, जिस तरह जैसे वो जिस तरह डायरेक्शन में जा रहा था, वो उसके पीछे पीछे अपने डकोटा को लेके जा रहा था। सो ही जस्ट वॉन्टेड टू गो बैक टू हिज होम। सो वॉट एवर उस टाइम पे उसे जो भी अच्छा सही लगा, जो भी हो रहा था, ही वॉज जस्ट डूइंग दैट। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds। और जो क्लाउड्स में अभी भी आधे घंटे के बाद उसका जो प्लेन था, ब्लैक एरोप्लेन था, उसके डकोटा के आगे आगे जा रहा था। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more। तो उसके डकोटा में सिर्फ इतना के फ्यूल अब रह गया था कि वो 5 या 10 मिनट्स और उड़ा सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगैन। तो ओल्ड डोकेटा वाले पायलट को दोबारा डर लगना शुरू हो गया था, क्योंकि अब उसके पास फ्यूल नहीं था। अगर फ्यूल खत्म हो जाता वो क्या करता, उसके पास कोई वे आउट नहीं था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। और बट क्या होता है फिर, दूसरे वाला जो पायलट होता है, स्ट्रेंज एरोप्लेन वाला, वो क्या करता है, धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू हो जाता है, नीचे जाना शुरू हो जाता है, और जो डकोटा वाला पायलट है वो भी उसके पीछे पीछे नीचे जाने लगता है। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ टू स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। तो
अचानक से क्या था, मैं क्लाउड्स में से बाहर आ गया और मुझे सामने दो स्ट्रेट लाइंस लाइंस दिखाई दी जिसके ऊपर लाइट्स लगी हुई थी। अब वो क्या था, दैट वाज रनवे, जहाँ पे एरोप्लेन्स लैंड करते हैं या जहाँ से टेक ऑफ करते हैं। तो उसको वहाँ की लाइट्स दिख रही थी। इट वॉज अ रनवे एन एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। तो वो बड़ा खुश हुआ कि ये तो रनवे है, और वो एयरपोर्ट पे पहुंच गया और वो भी सही सलामत। तो वो उस तरफ अपने फ्रेंड को देखना चाहता था, वो ब्लैक एरोप्लेन वाले को जिसने उसको बचाया था। बट जो स्काई था वो खाली था, वहां पे कुछ नहीं था। देयर वॉज नथिंग। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। तो ब्लैक एरोप्लेन वाला जो पायलट था, ब्लैक एरोप्लेन वाला चला गया और उसको, जो ओल्ड डकोटा वाला पायलट है, उसको वहां पे कुछ नहीं दिख रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। तो वो क्या करता है, वहाँ पे कंट्रोल टावर पे अपना डकोटा वहाँ लैंड करके फिर वो फटाफट से वहाँ जाता है, जो सेंटर होता है, कंट्रोल सेंटर, वहाँ पहुँचता है। और आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। तो वो वहाँ पे जो वुमन होती है कंट्रोल सेंटर में, फटाफट उसके पास जाता है और पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, क्योंकि वो, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। तो जो लेडी थी, जो वुमन थी, वो उसकी तरफ, जो पायलट है डकोटा वाला, उसकी तरफ देख के बड़े अजीब से ढंग से देखती है और फिर हंसती है। अब वो क्यों हंस रही थी, we will come to know. Another aeroplane up there in this storm. No other aeroplanes were flying tonight. तो वो कहती है, और कौन सा एरोप्लेन, यहाँ पे तो कोई नहीं था, ऐसे स्टॉर्म में कोई और एरोप्लेन नहीं जा रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। तो वो कहती है, तुम्हारा ही एक एरोप्लेन था जो मुझे रडार पे दिखाई दे रहा था। अब रडार क्या होता है, रडार सेंटर वाले, कंट्रोल सेंटर वाले यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि कौन सा वहाँ पे एरोप्लेन किस एरिया में उड़ रहा है, तो उससे वो हेल्प हो जाती है। तो ये जो इमेज है, दैट इज ऑफ द रडार. So, who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? तो वो सोचता है कि कौन था वो इंसान जिसने बिना कंपस के, बिना रेडियो के, जिसके पास, मतलब मेरे पास और फ्यूल भी नहीं था, ना मेरे पास कंपस था ना रेडियो था, फिर भी उसने मेरी हेल्प करी। और वो कौन सा ऐसा स्ट्रेंज इंसान था, स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाला था, जो कि स्टॉर्म में उड़ा रहा था अपना प्लेन, वो भी बिना लाइट्स के, और मुझे सेफली उसने लैंड करवा दिया। सो ही वॉज वेरी कंफ्यूज। सो ही वॉज जस्ट बॉदरिंग कि अब ये मुझे कौन होता है। हमारे साथ भी होता है, समटाइम्स वी यूजुअली थिंक कि हमारे साथ ये हमें कौन ऐसा कर गया। समटाइम्स वी, it is a matter of belief. If you trust in God, if you are kind enough, the God will help you always. And if you are helping others, the God will himself come for your helping you. I hope you enjoyed learning this story and understanding and reading. I hope the chapter is also clear. If you still have some doubts, please do tell me in the comments. I'll be waiting for that. And thank you and have a nice day. Enjoy your day.